کھنڈر کے اندر بہت سے جادوئی بیج تھے اور وہاں ایک کھڑا بیل آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی آنسو بھری نظریں سونے کے پودے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس پودے پر ہیرے کے بڑے بڑے بیج لگے ہوئے تھے۔ جاؤ ایک سچے انسان کو لے کر آؤ، اور وہ سچا انسان جب تک امتحان پار کرے گا تبھی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ جادوئی پودے کی بات سن کر بیل کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کھنڈر سے باہر چلا گیا اور جنگل کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد قریب ہی ایک گاؤں بسا ہوا تھا۔ وہاں ریان اور احسان نام کے دو بھائی رہتے تھے۔ ریحان بھیا، او ریحان بھیا، جلدی آؤ، تمہارے ابو کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جلدی گھر چلو۔ ریان اپنے چھوٹے بھائی احسان کے ساتھ دوڑتا ہوا گھر چلا گیا۔ وہاں ان کے بوڑھے ابو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کے پاس ہی ڈاکٹر بھی تھے۔ ہاں ریان، تمہارے ابو کے جسم میں بیماری نے پوری طرح گھر کر لیا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ چلو میں چلتا ہوں۔ اتنا بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ دیکھو ریان، میرا بیٹا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب میں زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہ پاؤں گا۔ دیکھو ریان، جو تم پر بھروسہ ہے بیٹا، تم ساری جائیداد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر کے آدھی آدھی بانٹ لینا۔ یہ بول کر ریان کے ابو نے دم توڑ دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن ریان کی بیوی انایا، جو بہت تیز چالاک تھی، ریان سے بولی، ابو کو گئے کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اب تم دونوں بھائیوں کو بھی جائیداد کا بٹوارا کر لینا چاہیے۔ باہر سے دیکھنے پر ریان ایک اچھا انسان لگتا تھا، لیکن اندر سے اس کے اندر لالچ، تیزی اور چالاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں تو ہمیشہ صحیح کہتی ہوں۔ میری بات مانو، ہمارا جو کھیت ہے وہ آدھا بنجر ہے اور آدھا ہرا بھرا۔ ہرا بھرا کھیت اپنے حصے میں رکھنا اور بنجر کھیت اپنے بھائی کو دے دینا۔ اور ہاں، ہمارا اس گھر کے علاوہ بھی ایک گھر ہے جس کی حالت بہت خراب ہے، وہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو دے دینا۔ اچھا، اگر احسان نے کوئی سوال کیا تو میں کیا کہوں گا؟ بول دینا، وہ چھوٹا ہے اور تم بڑے ہو، تم نے بچپن سے اس کھیت میں بہت کام کیا ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ اگلے دن احسان اپنی بیوی میرا کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچا۔ دیکھو احسان، ابو اب رہے نہیں تو اب ہمیں جائیداد کا بٹوارا کر لینا چاہیے۔ لیکن بڑے بھیا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں چھوٹے، یہ باتیں کچھ وقت کے لیے اچھی لگتی ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بڑے بھیا۔ جیسا کہ انایا نے بولا تھا، وہ سب کچھ ریان نے احسان کو بول دیا۔ یہ سب سن کر احسان بہت حیران ہو گیا۔ تبھی اس کی بیوی میرا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، آپ بیکار حصے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رہے ہیں اور اچھے حصے خود رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بھیا، اگر آپ بنجر حصہ مجھے دیں گے تو میں کھیتی کس پر کروں گا؟ وہ سب مجھے نہیں پتا بھیا، مگر بٹوارا تو ایسے ہی ہوگا۔ بھیا یہ غلط ہے، تمہیں ماننا تو ایسا ہی پڑے گا۔
वरना सोच लो ये भी नहीं मिलेगा। तो फैसला तो हो गया भाई। एहसान आंखों में आंसू लेकर दूसरे घर चला गया। वो घर नहीं बल्कि एक छोटी सी झोंपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब हम क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। बस तुम दुआ किया करो, वो सब ठीक कर देगा। अगले दिन एहसान अपने बंजर खेत पर पहुंचा और वहां हल चलाने लगा। वो कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसकी बीवी मीरा आई। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर एहसान रोने लगा। मीरा, काश मेरे पास एक बैल होता, इस बंजर जमीन में अनाज उगाता और सबको दिखाता। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा जिस्म थक चुका है मेहनत कर करके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि घर पर अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए जिससे हम दोनों को 2 वक्त पेट भर रोटी मिल सके। लेकिन दूसरा काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है मीरा। तुम परेशान मत हो, मैंने सुना है हमारे गांव का सेठ बहुत अच्छा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो लोगों को कर्ज देता है। ये सुनकर एहसान की आंखें चमक उठी। हाँ, अगले दिन एहसान सेठ की हवेली पहुंच गया। उसने सेठ को सारी बात बताई। सेठ ने उसे कुछ रुपए दिए। अल्लाह का नाम लो और कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। मैं सोच रहा हूँ साथ वाले गांव से कुछ खिलौने लाकर बेचता हूँ। अच्छा मुनाफा हो जाएगा और सेठ के कर्ज भी अदा हो जाएगा। अगले दिन एहसान दूसरे गांव में पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक आदमी उस बैल को बहुत बुरी तरह मार रहा था और बैल की आंखें भर आई थी। अरे ओ भैया, अरे रुको, इस बैल को क्यों मार रहे हो? अरे उमड़ा, हमने इस बैल को अपने कच्चे दामों पर एक आदमी से खरीदा था जंगल में। सोचा था कि खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम की बारी आती है इसको पता नहीं क्या हो जाता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। पर से मुड़ा सारा बाजरा और सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसको खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर अपना गुस्सा निकल रहा हूँ। अरे ओ भैया, अगर ऐसा है तो ये बैल हमें दे दो। अरे मुफ्त में बैल नहीं खरीदा है हमने, और नुकसान कर ले हमके। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो हमको 10 रुपए दे दो। एहसान गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की तरफ देखा। बैल की आंखों में जैसे उम्मीद नजर आ रही थी। कुछ वक्त सोचने के बाद एहसान ने 10 रुपए इस आदमी को दे दिए। मेरे पास बस यही थे, मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात करूं भैया, बुरा मत मनाना, मैंने तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा। इस बैल को खरीद कर तुमने घाटे का सौदा कर लिया है। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। एहसान बैल को लेकर घर आया। अरे
ये क्या? इसको क्यों लेकर आए हैं घर, जब जानते हैं ये काम नहीं करता? अरे मीरा, इसका मालिक इसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। मैं क्या करता, मुझे तरस आ गया और मैं इसे ले आया। तो क्या अब आप इसका अचार डालेंगे? जो काम मोहब्बत से हो सकता है वो नफरत से नहीं होता। परेशान ना हो, मैं कल इसे खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से काम करूंगा। जो दिल में आए वो ही करें। अब ठीक है, देखो मैं तुम्हें भोला कहकर बुलाऊंगा। जिन पैसों से मैंने तुम्हें खरीदा है वो मैंने कर्ज पर लिए थे। अब तुम मेरी फसल उगने में मदद जरूर करना, ठीक है? एहसान ने बहुत कोशिश की मगर बैल अपनी जगह से जरा ना हिला। वो शाम में थक हार कर बैल को घर ले आया। घर पर एहसान का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीरा समझ गई कि बैल ने कुछ काम नहीं किया, मगर कुछ ना बोली। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। एक शाम जब वो घर वापस आया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब बताओ मैं क्या करूं? एहसान की आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर बैल के पास बैठा काफी देर तक रोता रहा। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है। एहसान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एहसान ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया और बोला, अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक बैल इंसानी जुबान में बात कर रहा है। ओ भाई, कौन हो तुम? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। ये मत पूछो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, बस ये समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसने मीरा को बुलाया। या अल्लाह, ये कैसा बैल है जो इंसानी जुबान में बात कर रहा है? इसे वही छोड़ाओ जहाँ से लेकर आई हो। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना, अल्लाह का वास्ता, वो बहुत जोर से मारता है। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल को जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। वो बीज तुम अपनी जमीन में लगाओगे तो फिर इसका कमाल देखना। इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन वो दोनों उस बैल के साथ उस खंडहर में पहुंच गए और देखा वहां बहुत से बीज गिरे हुए थे। तभी वो बैल बोला, चलो जल्दी करो, यहाँ से कुछ बीज उठा लो और अपने खेत में लगा देते। जैसे ही उसने उन बीजों को अपने खेत में लगाया, अगले दिन बहुत अच्छी फसल उग गई। वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर उस फसल की कटाई करने लगे और बाजार में अच्छे दामों में बेच दी। कुछ रोज ऐसा ही चलता रहा। देखते ही देखते वो एक बहुत अमीर इंसान बन गया। अचानक एक दिन उसकी बीवी की तबीयत। हाँ एहसान बेटा, तुम्हारी बीवी के जिस्म में बीमारी ने पूरी तरह घर कर लिया है। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत कहिए। एहसान अपने घर के बाहर बैठा रोने लगा। तभी बैल उसके पास आया। उसने उसको सारी बात बताई तो बैल बोलने लगा, लगता है इम्तिहान का वक्त आ गया है। तुम मेरे साथ जंगल चलो। लेकिन जंगल में तो जादुई बीज है। वहाँ पर एक ऐसा भी बीज है जो तुम्हारी बीवी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। अच्छा चलो जल्दी करो। एहसान अपनी बीवी को उस बैल के साथ जंगल ले गया। जब वो जंगल पहुंचे तब बैल ने बताया, देखो एहसान, यहाँ पर एक ऐसा बीज भी है जिससे तुम्हारी बीवी की जान बच सकती है। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद तुम दोबारा इन बीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
तुम दोबारा अपनी फसल इस तरह से नहीं उगा पाओगे। तभी एहसान बोला, ये सब मेरा किस काम का? अगर मेरी बीवी ही न रही तो मैं वो आम बीज ही लूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुमने वो हीरे वाला बीज लिया तो तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। नहीं, मुझे अमीर नहीं बनना। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए बस। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि रेहान और उसकी बीवी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहे हैं। तभी वो आए और बोलने लगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? वो हीरे वाले बीज मैं लूंगा, बस मैं लूंगा, आए समझ? रेहान ने एहसान को धक्का दे दिया और उस पौधे के पास जा खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने उस पौधे को हाथ लगाया तो जलकर राख हो गए। अरे अरे, कोई बचाओ, मेरे भैया भाभी को कुछ बचाओ। उसी वक्त वहां पर एक बाबा जी गुजर रहे थे। उन्होंने बताया, इनके साथ यही सब कुछ होना था क्योंकि इन्होंने लालच किया और तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया। एहसान ने उस पौधे से वो आम बीज निकाला और अपनी बीवी को खिला दिया। जैसे ही उसकी बीवी ने वो बीज खाया तो वो उठ बैठी। तभी उस बाबा जी ने उसे एक और बीज दिया और कहा, ये तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम आलसी हो या ईमानदार। ये तुम्हारा इनाम है, इसे रखो, अपनी फसल में लगाओ, कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। और वो बैल भी एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। पता चला कि उस शहजादे को किसी चुड़ैल ने बैल बना दिया था क्योंकि उसने लालच किया था। और जब तक कि वो कोई नेक इंसान उस पौधे के पास नहीं लाती, वो वापस से इंसान नहीं बन सकता था। वो खुशी खुशी अपने घर चले गए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते।